I would like to first congratulate everybody who have supported the lockdown and the endeavor of your states and the country, wherever you live, for cooperating with the health authorities. I would also want to wish everybody who have recovered from the COVID infection and those who have had a long haul. मेरा ये कहना है कि आप भी अच्छे हो जाएंगे. थोड़ा समय, you'll be also all right. My condolences to each one of you who have lost their family members, their loved ones, and their acquaintances and friends, and parents of friends, etc. My deepest condolences. And I'm going to today tell you that we use masks to save us from COVID. We also at times use other things. For example, if there's a crash, parachute saves us from devastation, and parachute saves us in a crisis. The vaccine is like a parachute. It's like a seat belt. It's like an airbag. And also, I need to ask you today that exercise also improves immunity. Yoga improves immunity against virus and everything. So is immunity from suicide possible? And that is the discussion today. Is it possible? This is Veer Savarkar, who showed immense resilience in spite of all the atrocities committed by the British those days as he fought for Indian independence. He tolerated all tortures but never gave up. He is an icon of resilience for a country. Resilience in the mind is equal to immunity against self-harm. You pull the tug of war, you pull the tug, but you don't fall. You pull it hard. You might go ahead, you might go behind, but you continue pulling it and you don't really give up. So let us discuss how we build immunity against self-harm and we build mental health resilience, which is so important. And let me start by children from 0 to 10. What should parents do? Let me say that parents should actually start sharing feeling phrases when they are very, very young, which means कहने का तात्पर्य ऐसा है, जब बच्चा खाना खाता है तो कहना मुझे अच्छा लगता है कि आपने मैंने जो खाना दिया वो खाए. जब बच्चा खाना रिफ्यूज करता है तो कहना मुझे बड़ा खराब लगता है कि तुम खा नहीं रहे. इसका मतलब ये मत सोचो कि बहुत खाना देना चाहिए. भीम ने भी कहा है कि कुंती ने भी कहा था कि भीम खाना नहीं खाता है, ऐसा नहीं है. फीलिंग फ्रेज ऐड करो. मुझे अच्छा लगता है, मुझे खराब लगता है, मुझे गुस्सा आती है, मुझे खुशी होती है. और जब आप फीलिंग फ्रेज ऐड करोगे तो बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे मम्मी तुम चिल्लाती हो तो मुझे खराब लगता है. और जब हम भावना बांटेंगे तो क्या होता है, बंधन बनती है. सो यू बिकम बॉन्डेड व्हेन यू शेयर फीलिंग फ्रेजेस. And when you share feeling phrases, when this bonding, the child grows to be a rounded adult. And the child also comes and says, मम्मी मेरा ब्रेकअप हो गया, मम्मी मेरा एग्जाम में मैं फेल हो गया हूं. आके आपको कहते हैं एक्सीडेंट्स होगी. आगे बढ़कर बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं, बट साथ साथ में याद रखना कैटास्ट्रोफिस नहीं होंगे. सो पहली बात है फीलिंग फ्रेज अपने जुबान पे होना चाहिए. You need to share feeling phrases. I am upset, I'm sad, I'm angry, I feel very, very scared, I feel very happy, I feel very jealous. These are the phrases you need to use with the children, and it can only be used if you use it with each other. Feeling से feeling टकराए तो दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे काहे घबरे. Then the second software before the age of 10 is teaching the children to wait for the turn. And I have an ice cream exercise which I advise all parents. And the ice cream exercise is
Bring the ice cream on Friday, keep it in your house, in the small fridge if you have, small, big, whatever. Or bring a piece of cake if you don't have a fridge, and keep it sometime. Bring something, some eatable which children like in the morning, or ice cream on a Friday, and tell them we'll eat it on a Sunday. The children will run around, try their best to tell you, no, it is supposed to be eaten today. They might jump, they might scream, but you will keep yourself calm like Buddha without screaming. You will actually make him or her wait till the time you decide to eat the ice cream on Sunday or on Monday. Waiting for their turn helps them to build resilience, helps them to build emotional regulation, helps them to regulate their emotions, and also helps them to bring equanimity या समानता. रुकने की आदत से इम्पल्सिविटी कम होती है. और यदि ब्रेकअप हुआ तो झट से वैसे नहीं कहेंगे कि मुझे जान लेना है. रुकने की आदत आती है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है. तकलीफ अंदर रहा तो भी वो अपने आप को संभालते हैं. तीसरा सॉफ्टवेयर, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो आप जो देते हैं ना टिफिन, थोड़ा ज्यादा दीजिए ताकि बच्चे औरों के साथ शेयर करें. थोड़ा ज्यादा दीजिए ताकि बच्चे अपने टीचर के साथ भी शेयर करें. पहले से ही शेयरिंग की आदत लगाना. प्यार बढ़ता है, बंधुत्व बढ़ती है, और जब प्यार और बंधुत्व बढ़ती है तब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रेजिलियंस बढ़ती है, और ये प्यार और बंधुत्व जिंदगी भर रहते हैं. याद रखना माय डियर पेरेंट्स, आप जो है ना इस उम्र में you are creating impressions, softwares in the minds of the children so that they grow up to be fine adults, resilient adults, and that is so important. And the fourth thing is stories from our scriptures. मेरी दादी रात को जब सोता था तब अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानी कहती थी. मेरा दादा जब रात को मैं सोता था, या मेरा नाना रात को जब मैं सोता था, तब वो मुझे रामायण की कहानी कहती थी, मुझे कालिदास के बारे में बताया, मुझे बहुत कुछ बताया, छोटे छोटे किस्से, और रात को ही बताती थी. मैंने पूछा उन्हें, आप रात को क्यों बताते हो? Why are you saying this only at night? Why are you sharing the scriptures only at night? Why are you sharing these beautiful stories only at night? You can share a story from the Bible and from anywhere. But I learned after I became a psychiatrist that just when we're about to sleep, the unconscious opens and the stories go deep and values go so deep inside. So this is another software which is so important. One more software below the age of 10 to build immunity against suicide, to build good mental health, is nature. ऐसे माँ बाप जो बच्चों को मट्टी से खेलने देते हैं, घास पे चलने देते हैं, झाड़ में चढ़ने को देते हैं, वो बच्चे सुकून और शांत रहते हैं. मेरा अनुभव है. मैं जब जब स्कूलों में जाता था, मैं 20-25 साल से हर हफ्ते में एक स्कूल में होता हूँ, और जब जब मैं ट्राइबल स्कूल्स में गया हूँ, वहां के बच्चे, 15 साल के बच्चे बिल्कुल शांत है. वो कंक्रीट में नहीं जीते हैं, घास और झाड़ में, झाड़ के साथ प्यार करते हैं, उन्हें चुम्मा देते हैं. वो आकाश को देखते हैं, नीला आकाश को, सूरज की किरण अपने ऊपर आने पर वो बिल्कुल कतराते नहीं, उन्हें टैन होने का कोई डर नहीं है. उन्हें सिर्फ हाथ पैर बहुत स्पिक एंड स्पैन रखने की भी आदत नहीं है, बहुत शांत रहते. नेचर एज अ मदर. बच्चे को दो माँ होती है, एक माँ और एक प्रकृति, और यह सॉफ्टवेयर बचपन से ही डालना बहुत जरूरी है. और हम जब आगे जाएंगे तब और 3 सॉफ्टवेयर की बात करेंगे. अब प्रार्थना करना जरूरी है. लोग कहते हैं तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें उसका शब्द का अर्थ मालूम नहीं. शब्दों का अर्थ मालूम होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे समझ आएगी. They will learn the words in the prayer slowly. There's no need to know the meaning of all the prayers. And when children pray, there is calmness. When children pray, there is oneness, and when the family prays, there's oneness. Don't force the children, huh? Inspire them by your prayers. And that prayers is also a very important tool in trouble. As you grow up, before the exams, people pray not because God will come and write the exams, because you get courage and peace and concentration to write the exam. I'll share your story. I still remember during the pre-MBBS days, I had to score a certain percentage to get into a medical college, because I did not have money to go to private medical college. My father did not have any money. And what did I do to get my concentration? Let me share this. I've not shared this with anybody.
I had a temple 10 meters away from my house. If I get down from the house, 10 meters away, I have to just walk 10 meters away, and there's a temple, Hanuman temple, and there was a shivling. And the priest would not get up in the morning. I would knock the door at 5:30, make him, get him awakened, and he opened the door. I would always put water on the shivling, and that daily ritual helped me to concentrate, helped me to focus, helped me to distract from everything. And that ritual is something I still remember. I give prayers 100 out of 100 for helping me to concentrate, to study well, so that I get into a government medical college long, long ago. Festivals also build bonding. सिर्फ शादी में खाना खाने के वक्त मत जाना, जब शादी में विधि होती है तब पहुंचना, और तब आप पहुंचोगे जब, अभी आज गणपति है, थोड़ा कोविड का डर है, पर जब जब त्योहार होता है, it is essential that you go during the ritual. Would the children understand the ritual? No. Would they observe the ritual? Yes, everything goes inside. Osmosis, everything goes inside. But what they do is, when the ritual is on, a lot of cousins will be there, a lot of other children, they will run around. They'll remember this memory throughout their life. They build bonds with your cousins, though parents don't talk to each other because of financial dispute. Nafrat ke waris nahi banenge. And they enjoy that entire scene, and they store that in their memory. And these good memories, building good memories, is very important for building good mental health. We can build immunity to some extent against suicide. That is the talk of today by Dr. Harish Shetty, the psychiatrist from Bombay. My dear friends, your child might score 100 out of 100, but if he's not playing, he'll never be normal. He'll never learn to give batting to the other person by scoring a run so that he can hit a 4. He'll never learn to share a ball with others so that everybody can play together. He'll never learn to say ko when he actually has to give ko so that others can catch the person who has to be caught. Playing with hands and legs is more important than playing with fingers. Do not give a little child your phone to play so that he is peaceful, so that you can talk to your relatives or your guests. No, don't do that. When you sit outside a doctor's room, please don't give the phone so that the child plays with it. He can sit there. And if he's restless, let him be restless. Restlessness is normal in a child. It's just like throwing a stone in a river. The water slowly calms down after some time. So it's important that your kids play with the hands and legs. And remember, those kids who play with their hands and legs, metaphorically, I will say, they will not need sticks when they're old. Let them laugh without reason. I see so many parents telling me, "Itna जोर से मत हंसो, लड़की हो, ऐसा हंसना नहीं." Let them laugh abundantly. Let them sit on the chair and shake their leg the way they want. ये मत कहो, तुम सबके सामने अपना पैर क्यों हिलाते हो? अरे यार, उनका पैर है, हिलाने दो यार. And these are the softwares you need to put. These are the vaccines you need to give when they're very, very young, my dear friends. Because we want to build immunity against mental illness. Complete immunity is not possible, but we'll build as much immunity as we can. And slowly, you need to understand this beautiful sentence, which my friends, artists from my home India, drew this for me. Locked minds are time bombs. Diffuse it early, lest it explodes inside you. मन को आप बांध के रखोगे तो भावनाओं से भावना रुक जाएगी. रुकी भावना बम बन जाती है. रुका हुआ विचार बम बन जाता है. और जब हम बांटते नहीं तो कभी न कभी शरीर फटता है, जिससे मन को और शरीर को नुकसान हो सकती है. मन को और शरीर को नुकसान हो सकती है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है. And as we go ahead, I would like to tell you also that what do we do between the ages of 10 to 18? हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर उस समय भी हमें दिमाग में उतरना पड़ेगा. Just like the way we upload softwares on our computer,
the antivirus software, and so many other softwares. So first software is helping these young boys and girls between 10 to 18 to learn to share bad news early. वो पहले से होता है शुरू, शेयरिंग फीलिंग से स्टार्ट होता है वो. एंड व्हेन आई मीन शेयरिंग बैड न्यूज अर्ली वुड मीन एक्चुअली जो तकलीफ वाली बात हम घर पे आके खुल के बता सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता है, ना तो कोई शर्म लगता है. ये मुझे इच्छा होती है कि मेरे माँ पिताजी को आके मैं बता दूं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है. मैं शान से नहीं बताऊंगा, मैं दिल से बताऊंगा. और कैसे होता है वो? जब माँ बाप अपने बैड न्यूज आपस में शेयर करते हैं खुल के, जब माँ बाप खुल के बच्चों के सामने कहते हैं, यार मैंने आज ऑफिस में घपला किया, पता नहीं कैसे गलती हो गई यार, अरे यार मैं शेयर मार्केट में कैसा किया, मुझे कुछ पता ही नहीं यार, गलत हो गई. माँ कहती है, यार मैं क्या करूं, मैंने मेरे माँ से झगड़ा किया, मैंने उसको कुछ कुछ कहा, ये सही नहीं था पर मैंने कह दिया. गलत लगता है, खराब लगता है मुझे. और जब माँ कहती है, वहां 2 टुकड़े पनीर के थे, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने अपने आप खा गया. और जब बैड न्यूज आपस में शेयर करते हैं तो बच्चे कहते हैं, अरे गलतियां सबसे हो सकती है, लफड़ा का सबसे हो सकती है, और छोटा छोटा लफड़ा या बड़ा लफड़ा किसी से भी हो सकती है. और उस समय बच्चे आके कहेंगे कि मुझे आज कुछ मैथ्स नहीं समझ में आया, कुछ घुसा नहीं, क्या करूं, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, कॉलेज में अकाउंट्स तो कुछ पता ही नहीं, फिजिक्स क्या बताऊं, चैप्टर कुछ आया ही नहीं मुझे, और माँ मैं 0 मिला मुझे. माँ मैंने 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 ब्रेकअप कर दिया. माँ मैंने किसी को बहुत पीटा. उस समय आपके मन में, माँ बाप के मन में अचानक शॉक लगेगा. अचानक उन्हें ऐसे लगेगा कि मेरे बच्चे ने क्या किया. होने दो, वो तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है. यू विल गेट एंग्री, यू विल गेट सैड, यू विल गेट स्कैर्ड. You get a range of feelings. Mothers and fathers experience those feelings as you get. Be aware of your feelings. For good health, you need to be aware of your feelings. And then though you're upset, you will create an environment so that young teenagers share their bad news early, so that there will be accidents but there will be no catastrophes. मुझे आज भी याद नहीं है, मुझे जब कम मार्क्स मिला तो मैंने कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा. आज भी याद नहीं है, मेरा जब ब्रेकअप हुआ मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं आत्महत्या करूं. यार जीना है यार, जिंदा रहना है यार, बहुत कुछ अच्छी बातें हो रही है हमारे देश में, अनुभव करना है, एंजॉय करना है, देखना है. 370 के बाद अभी क्या होगा पता नहीं, अच्छा चीज होगा. मुझे 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 आशा है. आई हैव होप. प्लेइंग विद हैंड्स एंड लेग्स नॉट फिंगर्स. माँ कसम बोलता हूँ, छोटे उम्र से ही बच्चों को धक्के मार के नीचे खेलने के लिए भेजना. नुक्कड़ में थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, इस उम्र में करते हैं, पर खेल कूद तो होना ही चाहिए. हार जीत के लिए नहीं, ऐश के लिए. खेलने से पूरा मन प्रफुल्लित होता है. खेलने से एक दूसरे के साथ संबंध कैसे करना, झगड़ना कैसे, फिर से साथ में कैसे आना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना, एक दूसरे की मांडोली कैसे करना. और यहाँ हम इंटरपर्सनल स्किल्स सीखते हैं, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी सीखते हैं, और अपने खेल का जो स्किल है उसको बढ़ाने की भी हम इच्छा करते हैं. उसमें कुछ लोग स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं. देखो आप पैरा ओलंपिक्स में हमने इस बार बहुत अच्छा किया ना. मैनेजिंग फेलियर्स. जब बच्चा आता है कहता है मैं हर बार फर्स्ट आता था, इस बार सेकंड आया, मुझे खराब लगता है. माँ कहती है कोई चिंता नहीं यार, मैंने बच्चे को पैदा किया, बच्चा विद मार्कशीट नहीं पैदा किया मैंने. आप जब आए थे ना मेरे कोख से तो हाथ में मार्कशीट नहीं आया था कि अब 9 महीने मेरे कोख में बहुत अच्छे से जिए. यार तू मेरा बेटा है, कोई फिक्र नहीं है. और हार को मानना, और यदि सेकंड आया तो फर्स्ट वाले को कंग्रेचुलेट करना. जब हम दूसरे को विश करते हैं तो उसे तो अच्छा लगता है, सामने वाले को, फिर अपना दिल खुलता है. वो अपने पूरे पृथ्वी को हक करते हैं और अपने कॉस्मोस को हक करते हैं. हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. जो लोग औरों का स्तुति करते हैं उनका दिल खुलता है और वो बड़े दिल के होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है. ब्रेकअप हुआ, अरे ब्रेकअप तो होने ही वाला है. 2-3 ब्रेकअप तो नॉर्मल है. ब्रेकअप से मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है. ब्रेकअप से ऐसा नहीं लगना कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं. नहीं यार, लव हैज बर्थ, डेथ एंड डेथ.
पहला अफेयर तो वो क्या है, वो कहते हैं ना 2020 है, टेस्ट मैच नहीं है, मैराथन नहीं है। होगा ब्रेकअप, पर ब्रेकअप होते होते वक्त सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, तकलीफ मत देना। महिला हो या पुरुष हो, तकलीफ मत देना, अपने आप को भी नुकसान मत बिल्कुल कराना। गो बैक, गो बैक, और अपने आप को भी नुकसान मत कराना। ब्रेकअप होगा, 100% ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बट नेवर डाई फॉर अ गाय। There are many guys worth living for and no guys worth dying for. Guy means both boys and girls. और आपके पास यदि कोई आके कहा कि मेरा ब्रेकअप हो, उसको ऐसे मत कहना कि मैंने तुझे कहा था ना होगा ब्रेकअप, ही वॉज अ जर्क, शी वॉज बैड। नो, साथ देना, सुनना, उसके दर्द की जो बात बार बार कहेगा, प्लीज लिसन टू हिम, से थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसको उसको क्लास में ले जाना, उसके असाइनमेंट्स में हेल्प करना, उसका साथ देना। और यदि उसके उसके मन में आत्महत्या की इच्छा है तो आप कुछ मत करना, डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, पत्रिका दिखाने के लिए मत जाना। ये सॉफ्टवेयर, तकलीफ जब अब हार जाते, हार को स्वीकारने की ताकत और फिर से बाउंस होने की ताकत हम इस उम्र में सीखते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा देन है। फ्रेंडशिप्स, हम स्कूल क्यों जाते हैं पता है? टू एंजॉय, to enjoy play, to experience play, to experience friendships, to experience joy, and then to experience learning that I can remember what has been taught, and experience memory that I can reproduce what I have been taught. So friendships, मैं मेरे कॉलेज में 3-4 दोस्त है। देखिए my dear friends, it's easy to get a boyfriend or a girlfriend, but very difficult to get friends. And friends will last across life. So important. So my dear friends, these are the softwares which are part of the immunity package against suicide, though I would still say that there's no complete immunity. And as we think about 10 to 18, we will go ahead and talk about yoga and vipassana. Patanjali or Bhagwan Buddha, they were the world's greatest mental health professionals. Patanjali gave us yoga and Bhagwan Buddha gave us mindfulness of vipassana. यार ये कोई रिटायरमेंट एक्टिविटी नहीं है, और ये कोई हाउसवाइफ और गृहिणी के लिए ये एक्टिविटी नहीं। ये जब से हम चलना सीखते हैं और जब हम फिर से ऊपर वाले के हाथ में तब करना जरूरी है। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी कूल। यू नो, यूएस नेवी ने अपने हर एक नेवी के सील्स या नेवी के मरीन्स को कहते हैं जहाज में योगा करो, करते हैं वो योग। अमेरिका करती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? साथ साथ में आईआईटीबी के मैनेजमेंट स्कूल में एक रिसर्च किया गया। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो योग करते हैं उनके अंक भी बढ़ते हैं, ग्रेड्स भी बढ़ते हैं, साथ साथ में उनके संबंध भी बढ़ते हैं एक दूसरे से, और साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये रिसर्च नया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया था। और विपश्यना से आइदर ऑफ द टू, यार शरीर में जो अटका हुआ जो विकार है, जो दर्द है, वो रिलीज हो जाता है। बहुत सारे सीईओज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिनको इफेक्टिव बनना है वो योग और विपश्यना करते हैं। इस उम्र से ही हमने योग और विपश्यना शुरू की तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ट्राइबल बच्चे जब प्रकृति के साथ प्यार करते हैं, मिलते जुलते हैं, वो शांत रहते हैं। दे रिमेन इंटीग्रेटेड टू द अर्थ एंड द यूनिवर्स एंड टू द कॉस्मोस। और जो बच्चे योग करते हैं, मैंने देखा, मैंने कहा ना हर हफ्ते में मैं एक स्कूल में होता हूँ, वो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे शांत रहते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं। जैसे हमारे लद्दाख के एमपी ने कहा था पार्लियामेंट में बीच में, सुनने की क्षमता रखते हैं, इफेक्टिव बनते हैं और हेल्दी होते हैं, और उनकी इम्यूनिटी अगेंस्ट मेंटल इलनेस एंड सुसाइड इज मच मच बेटर। और एक बात मुझे बताना, मैं यहां बताना चाहता हूं कि 2019 के एनसीआरबी के जो फिगर्स है उसमें यह दिखाया गया है कि बिलो 18 में महिला आत्महत्या से गुजरते हैं ज्यादा। 2 आत्महत्या ये मेंस डोमेन है। और ये फिगर्स में ऐसे भी दिखता है कि ज्यादातर ये संख्या इसीलिए बढ़ी है क्योंकि
वो प्यार से धोखा हुआ और मैं जान दे दूं काय को यार, वो प्यार क्या है जिससे जिंदगी का त्याग करना पड़े? वो प्यार क्या है जिससे इस पृथ्वी से दूर जाना पड़े? बिल्कुल नहीं। नेवर डाई फॉर अ गाय। देयर आर मेनी एग्जाम्स वर्थ लिविंग फॉर एंड नो एग्जाम्स फॉर डाइंग फॉर और क्राइंग फॉर। परीक्षा में फेल या प्यार में फेल, जिंदा रहना हमें, हमें दूर नहीं जाना है और एक दूसरे के साथ देकर सभी को जिंदा रखना है। एंड एज वी गो अहेड, रिमेंबर वन थिंग, एक्सरसाइज इस उम्र के लिए बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज से क्या होता है पता है? अगले स्लाइड में बताऊंगा। एक्सरसाइज में से न्यूरोजेनेसिस होता है। इसका मतलब है नए ब्रेन सेल्स होते हैं और नए कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। जितना नया कनेक्शंस फॉर्म होगा उतना स्वास्थ्य बढ़ेगा और आपके काम में इफेक्टिव होंगे, आपकी पढ़ाई में आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एक्सरसाइज इंप्रूव्स न्यूरोजेनेसिस एंड कॉजेस न्यू नेटवर्क्स। एक्सरसाइज एंड योग से याददाश्त बढ़ती है, हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाती है। एक्सरसाइज और योग से एमिगडाला शांत होती है, गुस्सा कम हो जाता है। एक्सरसाइज और योग से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छा काम करता है, जिससे जिससे क्या बताऊं तुम्हें, जिससे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। और ये छोटे उम्र से करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज और योग immunity against mental illness and against suicide, not complete, again say that, and that is so important. और एक्सरसाइज पर एक छोटा सा फिल्म है, आपको देखना चाहिए। उसको ब्लैक डॉग कहते हैं। विस्की नहीं है। ब्लैक डॉग ये शब्द विंस्टन चर्चिल ने यूज किया था अपने डिप्रेशन के लिए। और ये 4 मिनट का फिल्म जो WHO का है, सभी को देखना चाहिए, 4 ही मिनट का है। Exercise beats stress and also helps mild depression. And if in severe depression improve जब होते हैं तब एक्सरसाइज से बहुत अच्छा होता है। मैं कोविड के सभी 2 साल में रोज व्यायाम करता हूँ। आज ये लेक्चर के बाद मैं 10,000 कदम चलूंगा घर के अंदर, क्योंकि नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। So important for this to understand that yoga and exercise should start at a very early age. हाँ, उनको थोपना मत है, मैं भी करता हूँ तुम भी करो, हरीश शेट्टी ने ऐसा नहीं। ऐसा तुम जब घर में माँ बाप योग करेंगे तो उनके चेहरे में एक सुकून आएगा, और चेहरे में सुकून आएगा तो अपने बच्चे अपने साथ आ जाएंगे, क्योंकि व्हेन यू चेंज एवरीबडी चेंजेस अराउंड यू, दैट इज so important. एंड एज आई गो अहेड, 10 to 18 में ये आप पीछे गए, आपको आगे जाना है। और ये शायद गलती से आया होगा, ये हमने बात किया। हाँ, और एक बात मुझे बताना है आपको, निंदवा के बारे में, स्लीप के बारे में। योगा मैंने बताया, मैंने एक्सरसाइज बताया। स्लीप इज ऑल्सो an immunity building exercise both for the mind and the body. It's not about arithmetic, इतना घंटा में सो गया, 10 घंटा सोया है, उस 10 घंटा 8 घंटा का बात नहीं है। जब 7-8 घंटा सोते हैं, छोटे बच्चे को 10 घंटा, उसके बाद 9 घंटा, 7-8 घंटे एडल्ट्स को चाहिए। उसके आर्किटेक्चर, स्लीप इज लाइक अ बिल्डिंग। डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, एंड उठते वक्त डीप स्लीप से उठना फ्रेश लगता है। यदि वो रिदमिक स्लीप नहीं मिला तो आप सुबह फ्रेश नहीं होंगे। हाँ, मुझे ये नहीं बताइए आप 4 घंटा रात को सोते हैं, फिर 4 घंटा हम सुबह सोते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 7 घंटा कंटिन्यू सोना चाहिए। दोपहर को 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए 1 घंटे से ज्यादा। दोपहर को 3 घंटा सोता हूँ मैं, शाम को 5 घंटा नहीं चलेगा। क्या होगा पता है? क्या होगा पता है? अभी बताता हूँ आपको क्या होगा। नींद कम होने से, स्क्रीन के वजह से नींद कम होती है। ब्लू लाइट से पीनियल ग्लैंड पर असर होता है। पीनियल ग्लैंड पर असर हुआ तो पता है क्या होता है? मेलेटोनिन रिलीज नहीं होती है, जो स्लीप अवेक साइकिल को सही रखता है। और जब मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता है, आपका स्लीप अवेक साइकिल बिगड़ता है। ब्लू लाइट और गलत कम सोएंगे तो शरीर डिस्ट्रॉय होता है, पूरा शरीर का ऑर्केस्ट्रा बिगड़ता है। हर एक ऑर्गन बोलता है मैं स्ट्राइक पे जाऊंगा। पैनक्रियास कहेगा मैं इंसुलिन नहीं दूंगा, शुगर बढ़ेगी। पेट कहेगा भरपूर एसिड दूंगा आपको, पेट में एसिडिटी होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा खाने का। लिवर बहुत स्लो हो जाएगा और कहेगा कि मैं धीरे से काम करूंगा, मैं साफ सफाई नहीं करूंगा। लिवर साफ सफाई करती है। और उम्र भी कम हो जाती है। अचानक जो हार्ट अटैक से मरते हैं, कुछ लोगों का नाम अखबार में आया था बीच में,
बहुत ज्यादा लोग नींद कम करते हैं, इसीलिए जल्दी मरते हैं। और नींद कम करने से मार्क्स भी कम मिलते हैं, ग्रेड्स भी कम मिलते हैं, क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेट होने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। आपने जो पढ़ा सुबह, वो अंदर जाने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे जेई के और इंजीनियरिंग के रात भर बैठते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे फिनिश करना है, ये 3-4 घंटे सोने से एग्जाम के पहले आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। अरे कम सोने से याददाश्त कम होती है, सही सोने से कुछ समय में याददाश्त बढ़ जाती है। और नींद कम सोने से स्लीप डेप्रिवेशन इज वर्se than insomnia, and if you sleep wrong, प्यार का संबंध नहीं होता है। ना तो आप चूम सकते हैं, ना तो हम प्यार कर सकते हैं, पूरा apparatus टूट जाता है। और ये याद रखना आवश्यक है, और इसके वजह से भी उदासीनता हो सकती है। और नींद कम होने से स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने के बाद डिप्रेशन हो सकता है, और इम्यूनिटी टूट सकती है। और जब हम आगे बात करेंगे, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 18 से 40 की उम्र में हमें क्या करना चाहिए। अरे नौकरी जाएगी 100%। किसी का भी नौकरी सही समय रुकता है, कुछ गड़बड़ होता है, नौकरी जाती है, नौकरी छोड़ना पड़ता है, या जॉब लॉस होता है, या सैलरी कट होता है, या डिवोर्स भी हो सकती है, कभी कोई अरेस्ट भी हो सकते हैं राजनीतिक कारण से या और कारण से। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, घर में भी होता है, हर एक ग्रुप में पॉलिटिक्स होती है। पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? जॉब लॉस हुआ तो याद रखना, शर्म नहीं करना, खुल के कहना कि मेरी जॉब चली गई है। जो स्कूल के बच्चे शर्माते नहीं है और प्रश्न पूछते हैं, वो जिंदगी में आगे जाते हैं, और बड़े होकर जब खुल के कहते हैं कि मेरी नौकरी चली गई, इसका मतलब मैं खराब नहीं, कुछ गलती हुई होगी, या सिस्टम में कुछ चेंज हुआ होगा, या कोविड के कारण उनको कंपनी को छोटा बनाना पड़ेगा, तो नौकरी चाहिए। तो क्या करना? पहले तो एक्सेप्ट करना कि मेरे वजह से नहीं गया है, शायद ज्यादातर, and it's not because of me, it's also because probably because of the system, and I will tell the world that I need a job. मैं विजिटिंग कार्ड में नहीं जीऊंगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं जनरल मैनेजर, मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, छोड़ दो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर, मैं छोड़ दूं, विजिटिंग कार्ड में नहीं। जो विजिटिंग कार्ड में जीते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जो एक दूसरे के साथ लिफ्ट में बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट एक मैनेजर है, उससे मीटिंग में ही बात करते हैं, उनका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होता है। बिकॉज विजिटिंग कार्ड इंसान छापता है, भगवान नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जॉब लॉस हुआ, एक्सेप्ट करना, और घर पे आके चिल्लाना मत, पता है मेरा जॉब लॉस हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अभी, ये पिज्जा बंद करो, इस दिवाली में बाहर नहीं जा रहे। यार ऐसे मत बता, तुम शेर हो क्या, गुंडा हो क्या? कहना मुझे तुम लोगों से 10 मिनट बात करना है, और जब साथ में बैठकर जब आप कहोगे उनसे मेरा नौकरी गई है हमें अभी, पर मुझे हम साथ में मिलकर कुछ करेंगे। देखो शेयरिंग का अलग अलग टाइप्स है। एक एंग्शियस शेयरिंग, अरे जॉब लॉस हुआ मैं आगे क्या कर सकता हूँ, तो वो भावना अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स नहीं है, उन्होंने अपना डर को मैनेज नहीं, क्योंकि जॉब लॉस से डर होता है, गुस्सा होती है, आगे की चिंता होती है, पर उसको एक्सेप्ट करने से वो कम हो जाता है। सेकंड इज हेल्पलेस शेयरिंग, अरे यार नौकरी चली गई, मेरे साथ यही होता है, मैं बड़ा अनलकी हूँ, हेल्पलेस शेयरिंग बोलते हैं। और एम्पावर्ड शेयरिंग, जॉब लॉस हुआ है, हम साथ में बैठ के सोचेंगे क्या करेंगे। व्हेन यू शेयर यू गेट सपोर्ट, और 4 लोग इकट्ठा आने पर भेजा चलता है, और बच्चे भी नए नए आइडियाज देते हैं। मुझे आज भी याद है, 2 बच्चे 8वीं कक्षा के, उन्होंने कहा कि हम ट्यूशन देंगे छोटे बच्चों को। देखो ना, थॉट देखो, वो देंगे क्या नहीं पक्का, बिल्कुल वो मुझे पता नहीं, पर विचार देखो आगे बढ़ने का। और विचार जब आगे बढ़ते हैं, गो बैक, विचार जब हम आगे आगे का विचार सोचते हैं, व्हेन यू बिकम फ्यूचर पॉजिटिव, योर मेंटल हेल्थ इज वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी कट होने से ये करना, अरे डिवोर्स यार, जिंदगी में सेपरेशन और यूनियन कॉमन है। लाइफ एंड डेथ, अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, नया सेपरेशन होता है, फिर बाद में शादी हो सकती है, ब्रेकअप होता है, या डिवोर्स होता है। डिवोर्स पे कोई शान या शर्म नहीं है, नहीं जमा, पर डिवोर्स के बाद सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, जो मुझे छोड़ के गई, बच्चों के ऊपर, बच्चों को चेस बोर्ड के पॉन मत बनाना।
हाँ, कहना कि हमारे संबंध जैसे तुम झगड़ते हो हम झगड़े, हमारा नहीं चलता, बट तुम माँ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, माँ कहेगी कुछ भी हो ये तुम्हारे पिता है, पिता को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ऐसे समय पर काउंसलिंग लेना जरूरी है। और जब मन का फ्रैक्चर होता है तो इलाज लेना बहुत आवश्यक है। तो अरेस्ट होते हैं कभी कभी, कोई बेल नहीं मिलता है, और तब ऐसा लगता है अकेला मेरा इज्जत गया, किल शेम एंड सीक हेल्प, रेपुटेशन इज अ फैंटेसी, एक्शन इज द की, एक्शन इज द की। हाँ, होता है कभी कभी जिंदगी में रेस्ट हो जाते हैं, फोन करना लोगों को, ऐसा हुआ मुझे मुझे हेल्प चाहिए, शर्म माना बिल्कुल नहीं, आत्महत्या उस समय नहीं करना, इज्जत के लिए जान मत देना। बहुत लोगों ने एक नुकसान होने से जाके अपनी जान दिए। कभी कभी शेयर मार्केट में पैसे डूब गया, बिजनेस जाके जान, क्यों? पैसा तो ऊपर नीचे होने वाला है, जिंदगी चलता है और तकलीफ से चलता है। जब हम कनेक्ट करते हैं तो उससे और फायदा होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स चलता रहेगा, फैमिली रिलेशनशिप में वही, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, पल में माशा पल में तोला, होता है कभी कभी। और ऐसे फैमिली के संबंध में कभी कभी कितना भी कहा तो नहीं नहीं जमता है। मेरे पिताजी मेरे सुनते नहीं, तब मेरे सास मेरी सुनते, मिनिमम कांटेक्ट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। और इस समय कभी कभी और भी तकलीफ होती है, और मैं बताता हूँ। इस समय 18 to 40 में एक एक अलग किस्म का तकलीफ होता है। और याद रखना है, मुझे ये बताना है कि शादीशुदा लोगों में आत्महत्या ज्यादा हुई है हिंदुस्तान में। 2019 के जो फिगर्स है, 66,815 मेन कमिटेड सुसाइड, जो ब्लू में हो मेन है, 25,941 फीमेल the women committed suicide, और अनमैरिड में आत्महत्या कम है, 21,630। इसका मतलब ये नहीं है आप मत करो शादी, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मैरिज में तकलीफ बहुत है, और इसीलिए मैरिज में शांति मिलना चाहिए। इफ यू चेस पीस, हैप्पीनेस इज अराउंड, रिस्पेक्ट ईच अदर, जितना है उसमें अपना खाना बनाना। ऐसे मत कहना तुम 20 साल से बम्बई में आए हो, तुमने क्या उखाड़ा है यार, फ्रिज छोटी है तो क्या हो गया, घर छोटा है तो क्या हो गया, अपने पास गाड़ी नहीं है तो क्या हो गया। जिंदगी प्यार से चलती है, गाड़ी से नहीं। जिंदगी मर्सिडीज बेंज से नहीं चलती, एक दूसरे के स्नेह से चलती है। मन प्रफुल्लित होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत आवश्यक है। सो मैरिड वुमेन में आत्महत्या बहुत ज्यादा है। मैं जब एमडी कर रहा था तब हमें हमें कहते थे कि शादी की वजह से आत्महत्या कम हो सकती है, और अकेले जो है दे आर एट हायर रिस्क। बट अभी बाजी पलट गया है। सो मैरिटल प्रॉब्लम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी हुआ नहीं बना अपने हस्बैंड से, आत्महत्या मत करना, कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढना। जब हम ये 1200 ग्राम को सही रखते हैं तो कुछ ना कुछ मार्ग जरूर ढूंढते हैं, पर ये 1200 ग्राम हिल जाती है तब मार्ग अंधेरा दिखता है। इसलिए कुछ भी हो, हम एनजीओ को जाके मिलेंगे, हम अपना 1 घंटा अपना व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, कुछ भी हो 1 घंटा हम कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। ये करना जरूरी है। इस बात मुझे ये कहना चाहता हूँ कि मन आयरन और स्टील से नहीं बनता है, मन न्यूरॉन से। उसे उसे खाना देना, उसे योग का सुख देना, व्यायाम का सुख देना, और सही खाना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम आगे जाएंगे तो ये भी कहता हूँ, मिड लाइफ में बहुत क्राइसिस होते हैं। सब जगह पॉलिटिक्स है, मैं जिंदगी में आगे नहीं गया, ये विचार आते हैं। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति, कितना भी शिक्षित व्यक्ति डूब जाता है, अब काम करना बंद करता है, यही यही बात करता है। सब जगह वो उसे उसे कारण दिखते हैं, रास्ते नहीं दिखते हैं। जब कारण ज्यादा दिखते हैं जिसकी वजह से वो वहां है और रास्ते दिखते हैं, तो उसको मिडिल लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। ऐसे समय पर ब्लूमर्स, फॉर ब्लूमर्स देयर आर नो एक्सक्यूजेस। ढूंढो कारण, कैसे आगे जाना, फाइंड आउट द रीजंस हाउ यू कैन गो अहेड। इट्स सो इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर यू टू गो अहेड एंड आइडेंटिफाई द मिड लाइफ क्राइसिस, आइडेंटिफाई द सिनिसिज्म व्हिच यू हैव। आर्थिक तकलीफ आती रहेगी। अरे यार, पैसा कम है तो कम खाएंगे, पैसा कम है तो पापलेट नहीं मांदेली खाएंगे, पैसा कम है तो पनीर नहीं भाजी खाएंगे। शादी में तकलीफ आ सकती है, अब बीमारी हो सकती है, ईएमआई से तकलीफ है। सभी के लिए एक चीज है, ये तो आते जाते रहेगा। मदद मांगना, काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता तो जाना, पत्रिका मत दिखाना, दोस्तों से बात करना, और अपना 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 जो सोशल नेटवर्क को एक्टिव रखना। कहने का बात ऐसा है कि यू नीड टू कीप योर सेफ स्पेस अलाइव। सेफ स्पेस वुड मीन फ्रेंड्स वेयर यू कैन बी इमोशनली न्यूड,
Isolation is dangerous. Solitude is a good place to visit, but a bad place to stay. And EMIs, कोविड में EMIs अटक गए. जाओ कहो अपने अपने बैंक्स को, पैसा भी नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा, नहीं है पैसा मेरे पास. और कभी कभी इस बिजनेस में बहुत लॉस होने पर झूठ मत बोलना. हाँ, बंबई का एक कहावत है, मेरा कहावत है, मलबार हिल छोड़ के मीरा रोड जाने में कोई डर नहीं है. 10 लाख की गाड़ी छोड़कर 2 करोड़ का ट्रेन में जाने का कोई डर नहीं है. मैंने ये हर्षद मेहता के स्कैंडल के समय बहुत लोगों को मदद किया था. मैं उन्हें एक साथ लाया, उससे मैं 5 चीज सीखा. एक तो छोटे घर में चले जाओ, गाड़ी मत घुमा जाओ, आपको पैसा देना है, कम खर्चे में जियो. पर एक बात है, हाँ, गिल्ट में मत जियो. थोड़ी खुशी उस समय भी देखो. ताज में चाय पीने की ताकत नहीं है तो भेलपुरी खाओ साथ में. और 5वीं बात, अब कुछ ना कुछ काम शुरू करो. घर पे मत बैठो. यदि आप बहुत बड़े बिजनेस के हेड हो, कहीं जाकर कहीं किसी को मदद करो. कुछ न कुछ काम करो जिससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. और जब लोगों का फोन आता है तो टर्न बाय टर्न फोन लो. कभी डेटर्स के फोन से दूर मत जाओ. फोन उठाओ. पेएबल व्हेन एबल. इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो कहेंगे डेट बताओ. नहीं, डेट नहीं, जब पेएबल व्हेन एबल. मेरे पास पैसा नहीं, ये कहने का हिम्मत करो. और बैंकों को कहे अभी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ करेंगे. और यदि फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं. मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहा तो फैमिली जिंदा रहेगी. और ऐसे समय पर मदद मांगना भी बहुत जरूरी है. कभी कभी साइकियाट्रिस्ट, कभी कभी साइकोलॉजिस्ट के पास. और जब हम आगे बढ़ते इस विषय के बाद बात करेंगे तो 60 के बाद बहुत तकलीफ है यार. अकेले हो जाते हैं. माँ बाप तो कहते हैं अमेरिका चले जाओ, पढ़ाई करो, वहां नौकरी करो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ. पर बाद में पता चलता है कि वहां कितना भी पैसे कमाए फायदा नहीं, क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं. मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं. नहीं, भेजना चाहिए अपने बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ाई करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक ब्रेन ड्रेन, देयर इज ब्रेन गेन. पर एक बात कहो, हाँ, तुम्हें माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा, आना पड़ेगा. तुम 2-3 बच्चे होंगे तो एक तो हमारे साथ रहना पड़ेगा. ये हक है, ये अधिकार है माँ बाप का. अपने आप को त्याग के घोड़े से उतर जाओ. एक तरह कहते हैं उसके जिंदगी, for him he is gone there, and for him he wants to actually, I don't want to come between him and his profession. Are profession is not first, parents are first. So see to it that you are connected with your children, even they are far away. You travel there, stay there, and also use your money. You should not say that मैं पहले बस से ही जाता था, बस से, अरे यार हवाई जहाज में जाने के लिए पैसा यूज करो. और अकेले मत रहो. आसपास में सीनियर सिटीजन का जो भी एक्टिविटीज है, घुस जाओ. दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य इम्यूनिटी के लिए पूरा पैसा अपने बच्चे को मत दो. जो देना है दो, पर अपने पास मास्टर की रखो जब तक आप जिंदा हो. पैसा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट है. और जब हाथ फैला के जब बच्चों से मांगना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मनी इज ऑल्सो एन इमोशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. अपने डॉक्टर का कांटेक्ट मत छोड़ो. जिंदगी में कुछ अर्थ ढूंढो. मैं ये एनजीओ के साथ जाकर सेवा करूंगा. और ये मत कहो कि मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बच्चों के सामने क्यों फैलाओ यार, तुम्हारे औलाद है, मांगो जो चाहिए वो जब वो दे सकता है. डिपेंडेंस इज हेल्दी, इट हेल्प्स मेंटल हेल्थ. एंड ये मत कहो कि मैं नया शहर में हूं, मैं किसी को नहीं पहचानता. पहचान बनाना अपना काम है. और जब उम्र वाले रूम के अंदर बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, मुझे आज भी याद है एक किस्सा. एक बिल्डिंग में किसी ने फोन किया, मुझे कहा यहाँ एक वृद्ध माँ बाप है, एक का उम्र 70 है, उसकी औरत की उम्र 68 है. वो हम 1 हफ्ते से हमने उनको देखा नहीं है, वो नीचे नहीं आए. मैंने कहा सीमा उल्लंघन करो, बेल बजाओ, जाओ देखो उनको क्या होता है. उन्होंने कहा नहीं, उनका चॉइस होगा, हम उनके प्राइवेसी में. अरे हम अमेरिका में रहते हैं क्या? इंडिया वी एनक्रोच द प्राइवेसी. और जब वो गए तो दोनों उदास थे. 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि बेटा बच्चे का फोन नहीं आता 1 हफ्ता तक. और बहुत उदास थे. उन्हें अस्पताल ले गया, उन्हें आईवी फ्लूइड्स दी गई. बाद में उनके साथ काउंसलर ने बातचीत शुरू की. बाद में सभी बिल्डिंग के लोगों ने कहा तो आपको नीचे आना है, आपको कोई भी तकलीफ है तो हम हैंडल करेंगे. और सभी हिंदुस्तानियों कहता हूँ, आपके यहाँ कोई उम्र वाले होंगे जो अकेले रहते हैं, उनको फोन करके बात कर लेना. आपके चाचा या आपके दादा जहां भी कहा रहते हैं, फोन उठा के बात कर लेना. और ऐसे भी लोगों से बात करें जिनसे आपने बहुत पहले झगड़ा किए, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी.
We don't know who's struggling with what, and that is very important for us to build our own immunity, because kindness improves immunity. When you show a film of kindness to young students, IgG also improves. Kindness improves immunity, love also improves immunity, and dependence is very healthy. And as we slowly go ahead, there are certain universal messages for mental health. हम बात कर रहे थे पिछले 46 मिनट से कि हम सुसाइड की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं क्या? जरूर बढ़ा सकते हैं. There's no complete immunity, and I'll come to that. These are universal messages. Love for the country improves mental health. I belong to a civilization which is thousands of years old. I belong to a civilization, even if I pray to any god, I belong to this civilization, even if I'm praying to Allah, to Christ, to Ram. I am a descendant of a very proud civilization. Kingdoms existed for thousands of years. This is a place where we discovered the atom. This is the place where we discovered the zero. ये pride जो है ना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा. मानसिक स्वास्थ्य is not a limited thing. It is an interconnected thing. It's not only about your brain. It's about your brains being connected to the brains across in your community, in your culture and in your country. Connectedness. हाँ, आप छोटे समझो, आप चंद्रसेना का इस प्रभु है, सीकेपी हो, तो आपके सीकेपी के जो ग्रुप में जाने में कोई शर्म नहीं है. मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं कहता हूं जय महाराष्ट्र, फिर कहता हूं जय हिंद. कनेक्टेडनेस. आपके कौम के थोड़ा कुछ होता है तो जाइए, कौम अपने देश के विरुद्ध ना हो, ये देखना जरूरी है, पर कनेक्टेडनेस इंपॉर्टेंट. मैं इस पंथ का हूं, मैं इस जाति, कोई चिंता नहीं है. और हम हमारे घर में गणपति को ऐसे करते हैं सादरा. मैं कर्नाटक का हूं, हम मूर्ति नहीं लाते हैं, हम अलग खाना बनाते हैं और वो खाना सदियों से बनता है. सो आई एम कनेक्टेड. और इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कूक मंडल में हम रहेंगे. आई विल नॉट लिव इन द पॉन्ड. आई विल ऑल्सो कनेक्ट माई सेल्फ टू अदर कम्युनिटीज विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स इज अ वसुदेव कुटुंबकम. It's ours. The earth is ours. The cosmos is ours. So that also improves mental health. Meaning in life, मन में कोई, जीवन में कोई अर्थ. हमने देखा है और रिसर्च ने भी कहा है, जो बच्चे घर के अंदर काम करते हैं, जो बच्चे कहीं जाकर थोड़ा सेवा करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. जो बच्चे अपने रूम में बैठ के कहते हैं खाना अंदर ले आओ, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, उनका मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है. So meaning in life is also a very important part for building immunity against mental illness and against suicide. Religion and spirituality is very important. हम लोग कहते हैं हम spiritual, हम religious. अरे spirituality ऊपर से आया क्या? It comes from religion. They're interlinked. Nothing wrong in you being a Christian, a Jain, a Sikh, a Hindu, or whatever. Nothing wrong in that. Being aligned to your religion to a point that you practice. Say, for example, if you're a Jain, you'll have Padushan coming now. If you're Hindu, you have Ganpati, then you have Navratri. If you're a Christian, you had Mary's feast a few days ago. Nothing wrong. And you'll get Christmas in the month of December. Align yourself with religion as long as it's not in conflict with others, because religion is a very personal affair, and that also helps you to have mental health. जब तक अपने माताएं खुश नहीं है, तब तक घर खुश नहीं है. माताओं का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट. उसके लिए अपने माँ को कहना, अपने 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 त्याग के घोड़े से उतर जाओ, अपने जिंदगी की को दोनों बाजू से मत जलो. डोंट कंज्यूम योरसेल्फ टू हेल्प अस. डोंट कंज्यूम योरसेल्फ टू गिव मी गुड हेल्थ. नॉट राइट एट ऑल. उन्हें कहो कि घर परफेक्ट रखना के लिए तुमको त्याग का प्रतीक नहीं बनना है, तुम्हें मैनेजर बनना है. इसका मतलब है काम बांटना. और यदि बच्चे ने थोड़ा चावल बनाया, एक one whistle extra दिया, and if it's a little soft, nothing wrong in that, he attempted. And if your husband or your son goes and cooks something which is not as tasty as you can, so what? He has attempted. Everybody should enter the kitchen. Everybody should enter the bathroom and use the washing machine. Everybody should also touch the broom. And then they're very important. And as we say this, let me share that family problems, people die of family problems. The number is 1 out of 3 people who end their life by suicide in India is because of family problems. And 1 out of 5 people who end their life by suicide is because of physical illness. And as we go ahead,
I would also like to say that 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 imperfect house is a happy house. Imperfect wife is a happy marriage. Imperfect kitchen is actually a happy mother. And as we go back, you went back. You have to yeah. And one thing I would like to bring to your notice is globalization is one of the most important causes of suicide and depression. सीईओ या सिक्योरिटी गार्ड 14-14 घंटे काम करते हैं और समाज डिस्कनेक्ट हुआ है. एक मृत्यु शव को अंतिम संस्कार के लिए लोग कम हो गए हैं. That's one of the most important signs. So disconnection is one of the most important problems which cause depression. And to really break that, and disconnect and shame is a suicide cocktail. मुझे शर्म लगता है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मुझे शर्म लगता है कि मेरा बेटा फेल हुआ, मुझे बड़ा शर्म लगता है कि हमारा पूरा पैसा चला गया, मुझे बड़ा शर्म लगता है कि मैंने मेरी बेटी बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई. अरे शर्म से डूब जाओगे यार. और disconnection and sharam is a suicide cocktail. So what we need to do, I will tell you what we need. We need to reconnect. We need to reconnect. As my friend Dharmendra shows me the next slide, I would like to say that reconnection prevents suicide. This is a very light-hearted metaphor, but this does not really explain everything. Reconnection means building में अकेले मत रहो यार, त्योहार मनाओ, झंडा 15th अगस्त करो, 26 अगस्त भी करो, जितने त्योहार है मनाओ. Reconnect. In schools, reconnect. स्कूल प्रिंसिपल्स को घूमना चाहिए अपने माहौल में. हर एक स्कूल के प्रिंसिपल को एक साथ आना चाहिए. अरे यार, गांधी जी ने तो 2 बार हिंदुस्तान का प्रवास किया है. प्रवास करना जरूरी है. जैसे माहम इंडिया के कार्यकर्ता प्रवास करते हैं, प्रवास करना, समाज के पास जाना आवश्यक है. और रिकनेक्शन इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, डिसकनेक्शन डिस्ट्रॉयज मेंटल हेल्थ. एंड एज धर्मेंद्र हेल्प्स मी, आपके पास ऐसे समाचार आएंगे कि किसी ने आत्महत्या की कोशिश की अस्पताल में, उसे डांटो मत. तुम कमजोर हो, कमजोरी का बात ही नहीं है, मानसिक अवस्था की बात है. सहानुभूति दिखाओ और उन्हें इलाज के लिए प्रोत्साहन करो. I said we can build immunity against mental illness and suicide, but not complete immunity. Some people need help. So attempted suicide is accident of mind. गले लगाओ, उसको कहो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. और जब डॉक्टर ने कहा कि इसका पूरा पॉइजन निकल गया, साइकियाट्रिस्ट के ओपिनियन के बिना घर मत जाओ, उसे एसेस करने दो. मन का स्प्रेन है या मन का फ्रैक्चर है. स्प्रेन जो है काउंसलिंग प्यार से अच्छा होगा, और फ्रैक्चर जो है दवाई से अच्छी होगी. और फ्रैक्चर वो दवाई और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है. ये करना जरूरी है. एंड एज वी गो अहेड, आई वुड लाइक टू से दैट फ्रैक्चर इज विजिबल. हाथ का फ्रैक्चर दिखता है, बट डिप्रेशन इज इनविजिबल. एंड समटाइम्स इट इज सो इम्पोर्टेंट कि जो व्यक्ति बहुत रोता है, खटिया पे सोया होता है, लोग कहते हैं आलसी है, उठता नहीं, कॉलेज नहीं जाता है, और डिप्रेस्ड है यार, बहुत गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया कि ऐसा लगता है तुझे मारूं कि मैं अपने आप को मारूं. ऐसा लगता है कि मैं होपलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मुझे कोई आशा नहीं है. और ऐसा लगता है कि मैं सभी के ऊपर बोझ बन गया हूं. आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस. नींद कम होती है या नींद ज्यादा होती है, भूख कम लगता है या भूख बहुत लगती है, आंखों से आंसू कम नहीं होती है. पर कभी कभी जो उदास है रोते नहीं है, और साथ साथ में थकावट महसूस होती है. ऐसा लगता है कि चले जाओ. ऐसे कोई भी चिता रहा ना, पत्रिका नमक दिखाना और डॉक्टर के पास जाना. आत्महत्या का विचार जो है, इट इज नॉट अबाउट करेज. हिम्मत की बात नहीं है और कमजोरी की बात नहीं, ये मानसिक अवस्था है. कभी कभी माँ बाप कहते हैं ना, तुम क्या जानते हो डॉक्टर शेट्टी, हम तो इसे 22 साल से हम इसे पालते हैं, हमें पता है कुछ नहीं कर पाएगा. मैं कहता हूँ तुम 22 साल से उसे देखो, पर मैं आधे घंटे में मुझे पता है उसके दिमाग में क्या है. तुम्हें नहीं पता है क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ. और ये भी कभी कभी माँ बाप कहते हैं तुझे कूदना है, चलो ऊपर, चलो कूद के दिखाओ. अरे डॉक्टर, ये एक छोटा सा चींटी से जो घबराने वाला आत्महत्या कैसे करेगा. अरे यार, आत्महत्या मानसिक अवस्था. इट्स नॉट अबाउट करेज एंड कवर्टिस. As we move ahead, I would like to say something more. As Dharmendra moves this, there are certain suicide alerts you want to know. One is, I want to go to God.
ऐसे किसी ने कहा तो बिल्कुल ये अलर्ट है। आई वांट टू रन अवे फ्रॉम होम, ये भी बड़ा ध्यान रखना। आई वांट टू किल यू और माई सेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अचानक विल बनाना, अचानक विल बनाना, आई ट्राई एंड गो एंड मेक अ विल। और कभी कभी उम्र के लोग कहेंगे अबे क्यों जीना है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी बेटी दिल्ली में, सब सेटल्ड है, मेरा जिम्मेदारी हो गया है। दूर ऐसे लोगों को जाके पूछना, आत्महत्या के विचार आते हैं, उदास है, ये उदासीनता एक चिन्ह हो सकता है। रिमेंबर, इम्यूनिटी यू कैन बिल्ड, but there are some people who will still have fractured the mind and they need to be treated. Some of them will have genetic reasons. It runs in families, so mental illness can run in families. So if there is vyadi and illness, you have to treat. लिस्टलेसनेस, कोविड के बाद ऐसा लगता है कुछ करूं ही नहीं, मरूं। अकेलापन में सोना, साथ में लोग हैं पर अकेलापन में सोना। हाँ, डायबिटीज के साथ, किडनी डिजीज के साथ, स्ट्रोक के साथ, ऐसे क्रॉनिक इलनेस के साथ भी डिप्रेशन आ सकता है। पत्नी गुजरने के बाद पति बहुत कम दिन हिंदुस्तान में जीते हैं क्योंकि वो अकेला रहता है, उसे पता ही नहीं अंडरवेयर किधर है, शर्ट किधर है, इतने डिपेंडेंट है कि ऐसे लोगों को उदासीनता होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे लोगों के प्रति जाना बहुत आवश्यक। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम दोनों साथ में मरेंगे, क्या जीना है। और कभी के सुसाइड पैक्ट अवॉइड करने के लिए भी हमें हमें सतर्क रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, एज आई गो अहेड and speak to you, I'm just about to finish in 2 or 3 minutes. Hopelessness is also a very important symptom of depression, suicide. अंदर ही बैठना, मैंने किस्सा सुना है ना, हस्बैंड वाइफ अंदर ही बैठे थे, फिर लोगों ने सीमा उल्लंघन करके उन्हें बाहर निकाल। बहुत दारू जो पीते हैं उनको भी डिप्रेशन होता है। और ग्लोबलाइजेशन और एलिनेशन के बारे में तो मैंने बिल्कुल बात ही की। और हम और भी 2-4 बातें बताना है मुझे। और धर्मेंद्र थोड़ा सोया है लगता है। और ये बताना मुझे बहुत सही लगता है कि गरीब जो है उनमें आत्महत्या बहुत ज्यादा है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें आत्महत्या बहुत ज्यादा है। और डेली वेज अर्नर्स, कम से कम एटलीस्ट 1 out of 4 to 1 out of 5 people who end their life by suicide are daily wage earners, because mental health is not only about feelings, it's also about food. सामाजिक कारण से, अकेलापन, शोषण की वजह से भी ये होता है। तो गरीबी हटाना, अपने अपने साथ जो काम करते उसे सही पगार देना, और कोविड के वक्त थोड़ा उनको संभालना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 1 out of 4, 25% जो लोग हिंदुस्तान में आत्महत्या करते हैं वो डेली वेज लेबरर्स है। और एक बहुत अच्छा स्लाइड है ये, यूपी में, बिहार में, जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड में और मणिपुर में बहुत कम आत्महत्या है। लोग कहेंगे वो शायद रिपोर्ट नहीं करते, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। एवरेज, इंडियन एवरेज 10.4 है पर लाख, यहाँ यूपी में 2.4 है, बिहार में 0.5। तो वी हैव टू गो एंड चेक। ये स्टेट्स में ये इतने गरीब होने पर भी, इतना वायलेंस होने पर भी, इनके दिमाग में क्या है कि वो जिंदा रहते हैं। ये रिसर्च का विषय है। इसको कोई भी संस्था जाके किसी गांव में बैठकर इनके रेजिलियंस सीक्रेट्स क्या है ये ढूंढना बहुत आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने शुरू किया आत्महत्या की इम्यूनिटी के बारे में, मेंटल इलनेस की इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, we have to build positive mental health, but there would be some who fall ill and we need to help them. जब कोविड आया, आफत आती है, उदासीनता होती है, नींद नहीं आती है, तो कहते हैं समय से सब ठीक होगा। नहीं यार, हिंदुस्तान में 7 में से 1 व्यक्ति मेंटली इल है। मैंने कहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर ने ये डेटा रिलीज किया है 2019 में, कोविड से थोड़ा पहले। मैं कहता हूं समय से सब कुछ नहीं अच्छा होता है। टाइम इज नॉट ऑलवेज द हीलर। साथ में दोस्त चाहिए, साथ में कभी कभी मदद चाहिए, साथ में कभी कभी लोन चाहिए, और साथ में कभी दवाई या काउंसलिंग चाहिए। और टाइम इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट हीलर। एज आई स्लोली क्लोज, आई वुड लाइक टू शो अ लास्ट स्लाइड। सिंधुता सकपाल जो हमारे माय होम इंडिया के कार्यक्रम में आए हैं, इनके चेहरे में देखो ना, कितना सुकून है, कितना प्यार है। उन्होंने अपने आप को बच्चों के लिए न्योछावर कर दिया है। उसे माँ कहते हैं हजारों बच्चे। चिंता सकपाल ने अपने जिंदगी के दर्द को सेवा में बदल दिया है।
One of the most important antidepressants for all of us is meaning in life. कुछ सेवा करो, कुछ काम करो, अपने अपने आसपास में, अपने कम्युनिटी में, अपने देश में कुछ देने की भी बात करो, तब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जब बिगड़ेगा ना, तब कोई काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है और जल्दी ले जाना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद कहता हूँ माय इंडिया को, जिन्होंने इस विषय पर, इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे के विषय पर मुझे उन्होंने न्योता दिया। मैं अध्यक्ष हूँ माय इंडिया का, और साथ साथ में हर एक भारतीय and every citizen from the world, because people have joined all over the world. I would like to say, look around, let mental health be also a narrative in your life. Ask people how they feel, ask people how they are, and do not hesitate to ask anybody who's down, do you have thoughts about dying? He will not get angry. It's a myth that when you ask somebody whether he has got thoughts of dying, you will induce it. That's a myth. That's not true. When you ask somebody if somebody is actually thinking, he might say, how do you know? Are you an astrologer? And he will say yes. And when he says yes, moves the earth and the sun to see to it that he or she gets help and you save somebody's life. Prevent suicide, save life. Thank you.